Hello everyone, I am Prashant Yadav, Indian Polity Faculty at Prince IS Academy. Dear viewers, in the last 2-3 videos, we have already discussed about certain basics. Now before starting today's lecture, let us analyze so far we have studied in last 2-3 lectures. We will try to summarize the main basic points and the concepts we have learned so far. So in the list, the very first concept that we have studied in our first lecture was region for the historical evolution. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भारतीय संविधानिक तथा प्रशासनिक ढांचे में जो बदलाव लाए गए थे उस हिस्टोरिकल इवोल्यूशंस के रीजन्स या कारण क्या थे. In this second lecture, we have studied about certain basic concepts and the keyword associated with the political science, like that of state, nation, nation state. And in the third lecture, we have tried to analyze the and differentiate among the two concepts like nation state and country. तो आई थिंक व्यूअर्स आपको समझ में आ गया होगा. अब तक इन बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम अपने पुराने वीडियोस और लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ दिस इज द लास्ट lecture in the introduction series. Thereafter we will move to the features of the Indian Constitution. तो now I am going to tell you कि आज के lectures में basically हम क्या क्या cover करने पा रहे हैं. The very first thing that we are going to study in today's lecture will be about the organs of the government. Organs of the government. It will be a small glimpse about the government and its functioning and its organs like legislature, executive and judiciary. Secondly, we are also going to study about is there any possibility we can have a stateless society. We can say the requirement of state in political structure. And the third and the last in the point will be constitutionalism. तो तीसरा कॉन्सेप्ट जिसको आप संविधानवाद बोलते हैं, तो आज के लेक्चर में हम इन तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टेट इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. क्या स्टेट विहीन सोसाइटी, क्या स्टेटलेस सोसाइटी की कोई प्रोबेबिलिटी इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बनती है या नहीं. स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, बिफोर कमिंग to this main theme of the stateless society, the main theme is stateless society. Possibility. इसको समझने से पहले हम एक चीज वी विल ट्राई टू एनालाइज. ये जो स्वतंत्रता या लिबर्टी शब्द है, इसके हम एक बेसिक सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे. The concept of liberty is dual in nature. What do you mean by dual is there is a positive concept associated to it and there is also a negative liberty. पॉजिटिव जिसको हम सकारात्मक स्वतंत्रता कह देते हैं, नेगेटिव इज नकारात्मक स्वतंत्रता. तो हमें समझने की कोशिश करनी होगी हाउ दिस टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी इज रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट. Try to understand the negative concept of liberty always argues for a society without any restraintless society. यानी कि इस कॉन्सेप्ट से अगर हम स्वतंत्रता को देखते हैं तो स्वतंत्रता की पहली डिमांड है कि आप पर किसी भी तरह के, चाहे वह तार्किक आधार हो चाहे अतार्किक आधार हो, रीजनेबल हो अनजस्टिफिएबल हो, बट किसी भी तरह के कोई प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं होने चाहिए. वेयर एज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी टॉक्स अबाउट जस्ट अपोजिट टू इट. द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इज लिटिल बिट मोर लॉजिकल और तार्किक है, एंड इट ऑलवेज आर्ग्यूज फॉर
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहने का मतलब जो सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष है वो इस बात में विश्वास करता है कि लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को या स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट को सही तौर पर यूज करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए देयर हैज टू बी सर्टेन पॉजिटिव एंड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो लिबर्टी का यही जो कॉन्सेप्ट है, ये ही कॉन्सेप्ट हमारे बेसिक डिस्कशन ऑफ स्टेटलेस या राज्यविहीन समाज से संबंधित है। अब इसी विचारधारा में दो तरह के व्यूज हैं। द वेरी फर्स्ट व्यू इज कि yes there could be a possibility of a stateless society, and the view second is no, we cannot survive as a society without a state. So the basic function of a state is considered to be a welfare state over here. So now we will try to analyze by little a small slide where I have clearly mentioned the differences among these two approaches. The very first approach is stateless या राज्यविहीन society। देखिए यहाँ आप समझने की कोशिश करेंगे। The stateless concept trusts and believes in the positive side of the humans. It believes कि human is having wisdom or wise in its nature. It is a trustworthy animal. The second point I have already discussed. The Rajyavihin society or stateless society is more inclined towards the negative concept of the liberty. नकारात्मक स्वतंत्रता, हम पे किसी भी तरह के तार्किक या अतार्किक प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। Third one is एलाइटिज्म, रेशनैलिटी। इट ऑल्सो कंसिडर ह्यूमन बीइंग टू बी अ रेशनल बीइंग। ये ऐसा मान के चलता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका सभी डिसीजंस का आधार, सभी निर्णयों का आधार तर्क होता है, वह सोच समझकर सभी डिसीजंस को लेगा। तो अगर हम स्टेट जैसी कोई एंटिटीज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में नहीं भी रखते हैं तो तब भी ये पूरी तरह से समाज जमीनी स्तर पर क्रियान्वित और फंक्शनल रहेगा। The third concept which is elitism. देखिए, try to understand. If there is no state to take care of a society, अगर राज्य जैसी कोई व्यवस्था इस राजनीतिक संरचना में काम नहीं कर रही है, फिर भी कहीं ना कहीं there will be a hierarchical structure, and that hierarchical structure will have the elite section at the top of the ladder. जो hierarchical structure समाज में create होगा in the absence of the state, उसमें सबसे ऊपर के प्रोसेस में या सबसे ऊपर जो सोसाइटी को टेक ओवर करने वाले हैं, दे विल बी द एलाइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द पैरामीटर बे ऑफ एलाइटिज्म कुड बी वेरी डिफरेंट, इट कुड बी मनी, इट कुड बी मसल पावर, जो भी। एंड द फाइनल वन, इट इज द वेरी कॉमन बिटवीन मार्क्सिज्म एंड द गांधीज्म। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई थिंक वे बैक इन प्रीलिम्स ऑफ 2020 और 2021 देयर वाज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन मार्क्सिज्म एंड द गांधीज्म। बच्चों, मार्क्सिज्म और गांधीज्म दोनों ही स्टेटलेस सोसाइटी के फेवर में आर्ग्यू करते हैं। देयर बोथ आर इन अ फेवर कि वी कैन सर्वाइव, द ह्यूमन बीइंग्स एज अ सोसाइटी कुड सर्वाइव विदाउट द स्टेट। एक्चुअली मैं आपको एक चीज में बताता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर इन माय लास्ट लेक्चर। स्टेट को, कंसेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट से फंक्शनल बनाने के लिए जो ऑर्गन है वो है गवर्नमेंट। वो क्या है? गवर्नमेंट। एंड द गवर्नमेंट इज द ओनली ऑर्गन या ओनली पैरामीटर अमंग ऑल फोर अदर्स जिसमें यू कैन से कि देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिविंग बीइंग्स। द लिविंग बीइंग्स आई मीन ऑल हु आर द फंक्शनरीज अटैच टू गवर्नमेंट। तो एक्चुअली में जो स्टेटलेस सोसाइटी के फेवर में है, दीज पॉलिटिकल थिंकर्स ऑलवेज आर्ग्यूज दैट कि द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट या द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑलवेज यूजेज गवर्नमेंट एज अ टूल फॉर देयर सेल्फ बेनिफिट। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नाम पर जो फंक्शनरीज गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, सरकार में जो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आम समाज में अपनी हेजिमनी क्रिएट करना चाहते हैं या करते हैं। तो इनका मानना यही है कि स्टेट फायदे के बजाय जनता को रेस्ट्रिक्ट कर कर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचता है। एंड बाय स्टेट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन से दे आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ हद तक इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है इन एनी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, self interest and the ethical issues related to
their function is always even या debatable issues. Personal benefits हमेशा ध्यान में रखे जाते हैं या हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है, करप्शन, कॉमनवेल्थ करप्शन, उसके अलावा आप कितने तरह के ऐसे बड़े बड़े करप्शन लेवल पर देख सकते हैं जहाँ से आपको एक क्लियर कट पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में जो फंक्शनरीज है वो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट से कई बार ऊपर रखते हैं. नॉट ऑलवेज, वी कैन नॉट यूनिवर्सलाइज द स्टेटमेंट. देर आर सर्टेन अदर, वी कैन से कि गुड पीपल एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑल्सो. नाउ कमिंग बैक टू द मेन थीम, तो हमारे कहने का मतलब है स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में आर्ग्यू करने का, फेवर करने का बेसिक रीजन उनका यही है. दे आर नॉट अगेंस्ट द स्टेट एज सच. अगर इन डेप्थ में आप जा रहे हैं, कंसेप्चुअली आप समझने की कोशिश करेंगे, दे आर अगेंस्ट द फंक्शनरीज हु इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. Now next, talking about the welfare state, the second side of the concept is the welfare state. It considers humans to be more of a selfish in nature. वो मान के चलता है कि as a human being there are negative side associated with the human being. Humans are always not that much self-aware. In the absence of the state, they could turn into a violent human beings. कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती है जो सामाजिक स्तर पर या सामाजिक ताने बाने के हिसाब से ठीक नहीं है. सेकेंड, कन्फ्लिक्ट. ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स है, एक साथ ऐसे सोसाइटी में रहेंगे तो देयर विल अराइज अ कन्फ्लिक्ट. तो हु इज गोइंग टू रिजॉल्व दोज कन्फ्लिक्ट, हु इज गोइंग टू टेक डिसीजंस फ्रॉम द साइड ऑफ द पब्लिक. तो ये सब तरह की सिक्योरिटी, ऑल दीज क्वेश्चन, सोशल जस्टिस, ऑर्डर एंड पीस, ऑल दीज आर बीइंग सोल्व्ड बाय द स्टेट. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट is basically dependent on the positive side of the liberty. तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का जो पहला टॉपिक था, जो वी हैव डिस्कसिंग अबाउट द स्टेटलेस सोसाइटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द टॉपिक नंबर 2 जो आज के सीरीज में हम पढ़ने चाह रहे हैं, इट इज अबाउट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए, आगे आने वाली सीरीज में इन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को वी आर गोइंग टू स्टडी इन इट्स एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ. बट अभी आपको जस्ट बेसिकली समझने के लिए कि आने वाले जैसे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनमें कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं. इफ यू आर नॉट बिलोंगिंग टू ह्यूमैन, यू वर नॉट हैविंग ह्यूमैनिटीज इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तो दैट इज द बेसिक रीजन वी हैव इंट्रोड्यूस दिस इंट्रोडक्शन सीरीज, कि जहाँ से कुछ बेसिक्स आपके क्लियर हो सके, so you can further move on smoothly. The organs of the government, there are 3 parts. Only legislature, second one is executive, and third one is judiciary. ये आपकी न्यायपालिका है, ये आपकी कार्यपालिका है, and this is आपकी विधायिका. इन तीनों ही ऑर्गन्स के गवर्नमेंट के वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द मेन थीम्स एसोसिएटेड विद दीज कंसेप्ट्स. तो मूविंग फर्दर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए, अगर आप स्टेट वेलफेयर स्टेट के रोल को समझते हैं तो देर आर 3 मेजर रोल्स एसोसिएटेड टू इट. नंबर 1, टू क्रिएट लॉ. Number 2, to implement these laws. And number 3, to take judiciary action, or you can say to provide justice या न्याय. These are the 3 main function of a state. अगर आप functionality level पर जाके देख रहे हैं तो what you can find logical is 3 organs of the government are specifically dedicated to each one of these factors. Law, the process of law making lies with legislature. Its implementation lies with executive. Thereafter, questions related to the justice lies with judiciary. Now, without wasting much time, let us move to the very first part, legislature. इतना आपको समझ में आ ही गया है. द बेसिक फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज लॉ मेकिंग. इसमें सेकंड चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, डेमोक्रेसी सिस्टम, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंटली वर्क कर रहा है. इससे पहले अगर आप जाते हैं मोनार्कियल सिस्टम में,
मोनार्कियल सिस्टम में यही काम कौन कर रहा था? द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, किंग. इन द थियोक्रेसी, फॉर एग्जाम्पल ईरान इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. थियोक्रेसी में द लॉ मेकिंग इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट, द थियोलॉजिकल टेक्स्ट बुक लाइक शरिया. फॉर एग्जाम्पल थियोलॉजिकल स्टेट में, theocracy, sorry, the correct one is, the word is theocracy. In the theocracy, this work is based on religious texts, यानी कि all the laws are based or interpreted in context of the religious text, like Sharia in Iran, like Sharia in Iran. तो समझ में आया? The basic function of the legislature is law making. इंडियन कंटेक्स्ट या प्रेजेंट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये लॉ मेकिंग का प्रोसेस लेजिस्लेचर के द्वारा होता है. दे आर सिटिंग इन अ हाउस जिसको हम इंडिया के कंटेक्स्ट में सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट बोल देते हैं. सेंट्रल लेवल पर क्या बोल देते हैं? पार्लियामेंट. इंडिया इज अ फेडरल इन स्ट्रक्चर और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर. आगे डिटेल में ये सब आप बहुत एंटायरली इस लेंथ एंड ब्रेथ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए. इंडिया के कंटेक्स्ट में दिस लेजिस्लेचर सिट्स इन पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल, इन द स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल. इसके अलावा अगर थोड़ा सा कंपोजिशन पे ध्यान दे तो पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ 2 हाउसेस. वन इज लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा. The second one is, इसमें यहाँ पर I want to tell you one thing. Please try to understand, if a country is unitary in nature, if a country's political structure is unitary, then most probably one single house exists. Although Britain is exception to it, but if a country's structure is federal in nature, if the country's structure is federal, then 2 houses are there. In the case of India, these are the 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. तो शायद आपको बेसिकली लेजिस्लेचर का सिस्टम समझ में आ गया होगा. Let us read it by slide also so that you can understand more clearly. Law making ऑर्गन है. मोनार्कियल सिस्टम वी हैव डिस्कस, थियोक्रेटिक सिस्टम वी हैव डिस्कस. डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में दिस लॉ मेकिंग इज बेस्ड ऑन द पीपल्स विल. नेक्स्ट इज विधायिका की संरचना. सिंगल हाउस सदन है, 2 हाउसेस. फेडरल स्ट्रक्चर में इंडिया, राज्यसभा यूएस में द सेम पोजीशन ऑफ राज्यसभा टेकन बाय सिनेटरी. यूके यूनिटरी है बट स्टिल हाउस ऑफ लॉर्ड एग्जिस्ट देयर. तो यूके इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू इट. ऑल्दो यूके इज हैविंग अ यूनिटरी स्ट्रक्चर बट स्टिल हाउस ऑफ लॉर्ड, दैट इज सेकंड हाउस इज देयर. Now moving further in this series, next part is executive. देखिए, if you discuss from the perspective of executive या कार्यपालिका, समझने की कोशिश कीजिए. The basic function of executive is to implement the laws. There are 2 types of executive. One are called as political executive. The second one is permanent executive. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से क्या मतलब? जनता के द्वारा द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लेजिस्लेचर में बैठे हैं. जो कहां पर बैठे हुए हैं? लेजिस्लेचर में. दे आर द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. उनमें से जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यू कैन से, दे क्रिएट देयर ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिमंडल का गठन करते हैं. Those part of the legislature which becomes the part of council of minister या मंत्रिमंडल, they are termed as the political executive. समझ में आया? The same process is followed at the both this center the state level. Parliament में you will find council of minister is there, who is a part of parliament but also part of political executive. And the second type of executives is permanent executive. Permanent executive, its name itself suggesting
who are permanent in nature. They are not going to change for a specified period of time. These are the civil servants. These are the civil servant like IAS, IPS, civil services जो आप, these are the civil servants. समझ में आया? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अपार्ट फ्रॉम इट, आप इसमें एक चीज समझिएगा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. वन इज presidential executive, parliamentary executive, dual executive and plural executive. Just we have a short glimpse about these terms. Presidential executive is like a system which is followed in USA, right? All the power are allocated with the president and the supreme of all executive powers in reality as well as in the nominal terms. The second one is the parliamentary executive. The system is working in India and Britain, where nominal head is little bit different than the real head, but the executive power are lying in both the terms. In the terms of nominal, president is there. In terms of real, prime minister is there. The third one is dual executive. Here it is more of a semi-presidential system, जहाँ पे president and the prime minister both are sharing the powers. This is a system which is followed in France, right? The final one is plural executive, जहाँ पर more than two, you will find all of them executives are working as a group and contribute towards the country's growth and development. For example, Switzerland is there. ठीक है? तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आई थिंक इट्स मोर देन देखिए, हाँ, इसमें वन पॉइंट आई हैव लेफ्ट. पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव फॉलोड इन इंडिया, ओके, नो इशू. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ देयर इज वन अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी. Under Article 75(3) of Indian Constitution, it states that the Council of Ministers is collectively responsible towards लोक सभा. कहने का मतलब इतना है कि अगर कोई भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है या किसी भी पॉलिसी को पास करा जाता है, किसी बिल को पास करा जाता है, और इन केस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी एक सिंगल मेंबर इज नॉट इन लाइन और एग्रीड विद दैट डिसीजन, बट स्टिल because of this principle, that individual has to show solidarity towards council of ministers decision. सामूहिक उत्तरदायित्व. The third concept that we are going to in this line is parliamentary executive से related है. पहले further after moving towards judiciary, उससे पहला एक concept है, ये already we have discussed also. Formal head of the executive, obviously, औपचारिक प्रमुख कौन है? President. And the nominal and real, ये वास्तविक, there is a difference among both these terms. De jure is by law. So by law, who is the executive head of the country? President. Who is the executive head of the country? President. But de facto, that means in reality, the power lies with PM. PM, with the aid and advice of his council of ministers, works as a supreme, I would say, in the real sense, as the supreme authority of the executive, right? Now, the third one is judiciary. जुडिशरी ऑब्वियसली इसमें कुछ इतना डिस्कशन के लिए अभी है नहीं. वी विल डिस्कस इट अबाउट इन फर्दर लेक्चर सीरीज. बट समझ लीजिए, कानून के अनुसार विवादों का हल करना, द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज जुडिशियल रिव्यू. देखिए, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताता हूँ. अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इज नॉट यूज डायरेक्टली. समझिए, पहला पॉइंट, the word judicial review is not used directly. ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करा गया. बट the wording of article 13 logically concludes towards the judicial review. judicial review का मतलब क्या है? judicial review का मतलब है, if any law or any bill or any act, if any act is passed by the parliament or the legislature, then judicially have a full right to review. And then under article 13, if judiciary finds that this law is incompetent with the constitutional ethos and the constitutional values, then up to the level of unconstitutionality, it can declare that law or that an act as a null and void. कहने का मतलब इसमें समझिए, अगर इफ देयर इज एन एक्ट विच इज हैविंग 13 to 14 डिफरेंट प्रोविजंस, उस प्रोविजंस में सिर्फ एक प्रोविजन ऐसा है
which is more of a unconstitutional in nature, then there is no requirement to declare that whole law to be unconstitutional. That then just that part of the law, that part of the act will be declared as null and void. For example, I think 97th Constitutional Amendment Act regarding to cooperative society, which was passed in 2011, recently एक साल लगभग के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट has declared कि the laws which was related to multi-state cooperative society was unconstitutional. But with all the cooperative societies which were working within the domain of the state, single domain, were not declared null and void. फाइन, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ अंडर आर्टिकल 13 द जुडिशियल रिव्यूज देयर. इसी जुडिशियल रिव्यू कहानी में आपको थोड़ा सा एक और मैं बताता हूँ. थ्रू द केशवानंद भारती केस, जुडिशरी फाइनली रीच्ड ऑन द कंक्लूजन दैट legislature could alter any part of the constitution, but it could that change should not could not alter the basic structure of the constitution. Actually में issue क्या है कि आप जब organs of the government पढ़ते हैं तो there is always a tussle among all these part of the government. We will discuss this topic within few next minute. तो आप ये समझ लीजिए जुडिशियल रिव्यू में पीक पे जाते जाते जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जुडिशरी ने दी है. इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज विद रिलेटेड टू जुडिशरी लाइक जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच. वी विल रीड दिस इन अ forthcoming lecture. Now finally in the list, strength of the judiciary. हाँ, ये भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनता है. देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, if a system, if a political structure is unitary in nature, obviously judiciary will not be having that much strength or independence. But if a structure is federal and the constitutional is written, most probably with a 100% assurity we could say, if a political structure is federal in nature, then you must need to have a written constitution, right? If you are having a written constitution, then the powers and the domains of the judiciary will be clearly cut mentioned. अगर वो क्लियर कट मेंशन होंगी तो ऑब्वियसली जुडिशियरी की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशियरी विल बी मेंटेन्ड. सो स्ट्रेंथ ऑफ द जुडिशियरी से बेसिकली हमें बस इतना कहना चाह रहे हैं, द कंट्री विच इज हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर, देन इंडिपेंडेंट एंड द वेरी आई वुड से कि पावरफुल जुडिशियरी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट एज द केस इन इंडिया. बट इफ अ स्ट्रक्चर इज यूनिटरी, तो कहीं ना कहीं यूनिटरी स्ट्रक्चर में देर इज डोमिनेंस और द आई वुड से कि आप कह सकते हैं कि लिटिल बिट मोर पावरफुल लेजिस्लेचर बन जाता है. लाइक दैट इन केस ऑफ ब्रिटेन यू विल फाइंड वहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन, जुडिशियरी इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. तो वहां पे आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज देयर या लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी जिसको आप कह सकते हैं. फाइन. नाउ स्टूडेंट, लास्ट इन द लिस्ट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड, व्हाट इज द रिलेशन among three these organs. देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा. किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जहां पे हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस लेंस. वन वाज प्रेसिडेंशियल एंड सेकंड वन, these are the most common used political system. Second was the parliamentary system. Parliamentary system में legislature, executive are correlated with each other. Legislature and executive, there is a common area among both these two, and judiciary is totally different and separate from it. Whether in the presidential system or the three organs of the government are working in total different watertight compartment. यानी कि the doctrine of separation of power, is implemented in its full form and in the real sense in the presidential system like that of USA. But in the parliamentary system, there is a little bit convergent and the gray area or the common area among the legislature and the executive. Number one. Second चीज इसमें आप ये समझ लीजिए, there is always a tussle. The basic tussle is in the parliamentary system like that of India. The basic tussle is among, क्योंकि legislature and the executive are working like a single entity.
more often versus judiciary. इंडिया के कंटेक्स्ट में, अभी लास्ट में आपको डिस्कशन में यही बता रहा था, इंडिया के कंटेक्स्ट में दिस इज ऑल्सो देयर. कभी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोशिश करता है कि अपनी सुप्रीमेसी क्रिएट करे, वहीं जुडिशरी कोशिश करता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी पावर से बाहर ना निकले. चेक एंड बैलेंस इज देयर, राइट. इसी डॉक्ट्राइन, इसी आप कह सकते हैं टसल की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का जन्म हुआ था. फाइन. द डियर व्यूअर्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. देख लिए, the word constitutionalism is little bit different than constitution. Constitutionalism basically connotes and says कि there has to be a limited government. अगर आप थोड़ा सा स्टेटलेस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स में जाएंगे कि why the political thinkers like गांधी were against the state, क्योंकि वो they were considering कि स्टेट अगर अपने फुलेस्ट लेवल पर या पूरी तरह ऑपरेट होकर काम करता है तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, या समाज या जनता या सिटीजन्स के फेवर में ये बात नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली ऑलवेज अडहर्स एंड फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट. बेसिकली इस लिमिटेड गवर्नमेंट से कहने का मतलब है कि जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट की, जिसका जो भी ऑर्गन है उसका जो काम है, जिस ऑर्गन का जो काम है वो अपनी दायरे में रहकर ही उन काम को करे. गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन को अपनी लिमिट से बाहर आकर कोई दूसरे ऑर्गन का काम टेक ओवर करने की इजाजत नहीं है. नंबर वन, द गवर्नमेंट कुड नॉट टेक सर्टेन बेसिक राइट एसोसिएटेड विद द सिटीजन्स और द ह्यूमन बीइंग. तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि वी नीड टू हैव अ restriction on the government also. So when we will study about the fundamental right, so you will find that there are certain right which are against the state also, which we call as a negative rights. They put positive and the reasonable restriction on the functioning and the working of the state or the government also. तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने तीन चीज पढ़नी. पहला, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव लर्नड वाज द स्टेटलेस सोसाइटी. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेटलेस सोसाइटी? Second, we have discussed in short about the organs of the government. And the third thing that we have discussed is the constitutionalism. I think these three lectures is more than enough about the basic conceptual understanding. और सब तो पॉलिटी के आगे आने वाली सीरीज में हम उसकी डेप्थ में पढ़ने ही वाले हैं. बट फॉर द बिगनर्स, आई थिंक अगर आप ये तीन लेक्चर देख लेते हैं तो इट विल बी मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड बेसिक फाउंडेशनल कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द पॉलिटी. नाउ इन द नेक्स्ट lecture we will try to proceed further with the features of the Indian Constitution. Thank you. Have a good day.